سب سے پہلے اہم خبر، سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان۔ کراچی کے سب سے بڑے جناح ہسپتال میں اسٹریچرز کی کمی ہو گئی۔ ایمرجنسی میں آنے والے مریض زمین پر لیٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اسٹریچر نہ ملنے سے ایک مریض کافی دیر تک زمین پر لیٹا رہا۔ تیماردار نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ تفصیلات دیکھیے ابراہیم رند کی رپورٹ میں۔ اسپتال حکومتی عدم توجہ کا شکار، سہولیات کا فقدان، مریض پریشان۔ کراچی کا سب سے بڑا اسپتال بھی نظر انداز۔ جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں آنے والے مریض کو کافی دیر تک اسٹریچر نہ مل سکا۔ مریض زمین پر لیٹنے پر مجبور ہو گیا، جس پر ساتھی نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی، جو وائرل ہو گئی۔ اس حوالے سے ایمرجنسی کی انچارج ڈاکٹر نوشین کی واقعے سے متعلق لا علمی کہتی ہیں کہ کسی طرح کے بھی مریض رپورٹ ہوتے ہیں تو ان کو فوری طبی امداد فراہم کی جاتی ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، اس حوالے سے وہ تحقیقات کرا رہی ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ 1600 سے 1700 پیشنٹس آتے ہیں، اور جو ان پیشنٹ کو ہم کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ جب تک وارڈ میں جگہ نہیں ہوتی تو اسٹریچرز پہ ہی پیشنٹ وارڈ کے ایمرجنسی کے اندر رہتے ہیں۔ عام طور پہ اسٹریچرز کی کمی نہیں ہوتی، جب بھی کمی ہو تو ہم کہیں نہ کہیں سے ارینج کر دیتے ہیں، او پی ڈی سے لے آتے ہیں، وارڈ سے لے آتے ہیں۔ تو کبھی ایسا انسیڈنٹ ہو بھی جائے تو فوراً اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اسٹریچر ارینج کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نوشین کے مطابق 1600 سے زائد مریض آتے ہیں، سب کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ یہ مریض کہیں جا رہا ہوگا تو گر گیا ہوگا۔ اسٹاف کی کمی ہے، فوری اسٹاف بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم رند، سٹی 21۔ اور دوسری جانب سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی میں شدید گرمی کے باوجود فارمیسی میں لگے پنکھے بند کر دیے گئے۔ ادویات کی قلت، دوائیں لینے کے لیے آنے والے مریض رل گئے۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے محکمہ صحت کے اقدامات نظر انداز۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی کی فارمیسی میں لگے پنکھے بند، گرمی سے مریضوں کی حالت غیر ہونے لگی۔ مریض کہتے ہیں دیگر مسائل اپنی جگہ، لیکن بہت دیر انتظار کے بعد بھی ساری ادویات نہیں ملتی۔ تقریباً 1 گھنٹے وہاں ڈاکٹر کو دکھانے میں وہاں بیٹھے رہے 1 گھنٹے تک، اب تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ یہاں لائن میں اب نمبر آیا تو صرف یہ 6 گولیاں تھما دیں تو کہہ رہا باقی باہر سے ملے گا سر۔ ٹی وی کی دوائی نہیں مل رہی، آدمی مریض کیا کہتے ہیں پڑا ہوا ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ نا دوسرے اسپتال میں جائیں، یا دوائیاں ہی نہیں ہیں۔ ہم تو یہاں سے آتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کہتے ہیں کہ پرچی دیکھ کے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو باہر سے لو، جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں باہر سے لے لو۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر حسین کہتے ہیں ادویات کی فراہمی جاری ہے، ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس، سی بی سی ہو رہا ہے، اب اس کے علاوہ جتنے بھی بیسک ٹیسٹ ہیں وہ ہو رہے ہیں ہمارے۔ کمی کس چیز کی نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ تھوڑا آگے پیچھے ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوارٹرلی وہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کبھی پرمیشن کی لیٹ ہو جاتی ہے، دیٹس وائی وہ ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم اپنے طور پہ جتنے ہم سے ہوتا ہے ہم وہ ارینج کر لیتے ہیں تاکہ پیشنٹ سفر نہ کرے۔ مریضوں نے محکمہ صحت سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر اسپتال میں طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ کیمرامین کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ یہاں بات کریں گے جناح ہسپتال میں کورونا کے دوران کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والی 168 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ فیصلے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ جناح ہسپتال میں کورونا کے دوران 3 ماہ کے کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے 168 ملازمین کا کئی بار کانٹریکٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور آخرکار جناح ہسپتال کے ڈائریکٹر نے انہیں فنڈز نہ ہونے کا بتا کر 1 جولائی 2024 سے کانٹریکٹ ختم کرنے کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ ملازمین میں 36 نرسز اور 27 وارڈ بوائے، 33 خاکروب، 18 سیکیورٹی گارڈ سمیت دیگر عملہ شامل ہے۔ ملازمین کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، اب بھی جناح ہسپتال میں ہزاروں پوسٹیں خالی ہیں، جس کے باوجود انہیں نکالا جا رہا ہے۔ آئندہ چند روز میں احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کریں گے کراچی میں حبس اور شدید گرمی سے شہریوں کا برا حال، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شہریوں کی زندگی اذیت کا شکار۔ کورنگی ایس ایریا 1 نمبر میں گزشتہ 4 روز میں 14 سے زائد افراد دم توڑ گئے ہیں، اور اس کی وجہ علاقہ مکین نے شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کو قرار دیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے بسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ میں قیامت خیز گرمی، اوپر سے بدترین لوڈ شیڈنگ، شہریوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ کورنگی ایس ایریا 1 نمبر میں گزشتہ 4 روز کے دوران 14 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ علاقہ مکین کا دعویٰ ہے کہ لوڈ شیڈنگ فری علاقے میں بھی اب 18 گھنٹوں کی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بلوں کی ادائیگی 90% ہے۔ کہ الیکٹرک ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ہمارے یہاں پہ نہ کوئی کنڈے کے معاملات ہیں،
ना यहाँ पे हमारे यहाँ कोई कुंडे का भत्ता चलता है। हमारे यहाँ 1 मिनट नहीं लाइट जाती थी, 1 मिनट जिसको बोलते हैं, हमारे आती थी 24 घंटे लाइट। मुसलसल आज 4 महीने हो गए इन्होंने हमारे साथ ज्यादती करी है, हमें 18 घंटे की लोड शेडिंग दे दी है। आप बताएं, आपके खुद के घर में अगर 18 घंटे की लोड शेडिंग होगी और कोई बीमार हो तो मैं नहीं समझता कि वो जिंदा रहे। इलाका मकीन कहते हैं बिजली के मसाइल और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वो के इलेक्ट्रिक के साथ ताउन करने को तैयार हैं। के इलेक्ट्रिक का दावा है जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बंदरबांट और महकमा स्कूल तालीम के मुलाजमीन ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। हुकाम का नोटिस तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महकमा स्कूल तालीम ने 16 इदारों से 10 रोज़ के अंदर तफसीलात तलब कर ली हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए आज़ाद नोहरियो की रिपोर्ट देखेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का एक और स्कैंडल। महकमा स्कूल तालीम के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन बिस्प के बेनिफिशरी होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल तालीम ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकाम के नोटिस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सेक्शन ऑफिसर जनरल मोहम्मद इकबाल जुनेजो ने महकमा स्कूल तालीम के तमाम 16 इदारों को खत इरसाल कर दिया है। खत में सरबराहान से 10 रोज़ के अंदर तफसीलात फराहम करने की हिदायत की है। खत में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि महकमा स्कूल तालीम के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन की बिस्प के बेनिफिशरी हैं, उनके मुकम्मल तफसीलात दिए जाएँ। बिस्प की पॉलिसी के मुताबिक सरकारी मुलाजिम या माली तौर पर मुस्तहकम अफराद की बीवियां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हकदार नहीं होंगी, लेकिन बेशतर महकमों के मुलाजमीन कई सालों से इस मंसूबे से गलत फायदा ले रहे हैं। महकमा स्कूल तालीम के मुलाजमीन की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद वसूल की गई रकम वापस की जाएगी। रज़ाकाराना तौर पर रकम वापस न करने की सूरत में हाजिर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से रकम की कटौती की जाएगी। जो मुआवजा अदा किया जा रहा है वो रकम बंद कर दी जाएगी। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। गुलशन इकबाल 13D में वाक़िया SM पब्लिक स्कूल कैंप्स 6 फ़रोख्त करने की इत्तलाआत और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए। वालिदैन का कहना है कि स्कूल इंतज़ामिया ने 2 माह की फ़ीस वसूल की है, लेकिन होमवर्क नहीं दिया गया। स्कूल बेचने की बात हो रही है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। तालीमी इदारे की फरोख्त की बाज़गश्त, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर, वालिदैन ज़हनी अजियत में मुब्तला। गुलशन इकबाल 13D के SM पब्लिक स्कूल कैंपस 6 फरोख्त होने की इत्तला पर वालिदैन सरापा एहतजाज। सख्त गर्मी के परवाह किए बगैर एहतजाज करने वाले वालिदैन का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से स्कूल को फरोख्त करने की बात सामने आई है। स्कूल इंतजामिया अब तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे रही है। इन्होंने हमें किसी तरह का भी एतमाद में नहीं लिया। आज तक इनकी इंतजामिया कहाँ है? आज हम यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं, इन्होंने ये यहाँ नहीं आए हैं, दरवाजे बंद हैं। चौकीदार कह रहे हैं कि जी हमारा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये चीज़ ठीक नहीं होती, अगर यहाँ ये मामला दुरुस्त नहीं होते तो हम इसके लिए बाकायदा पिटिशन दायर करेंगे कोर्ट के अंदर। हम इस पे केस करेंगे। जो सर उज़ैर हैं, इससे जो मुताल्लिक जो ऑनर्स हैं इस स्कूल के, हम इनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है ना मुकदमा दायर करेंगे। तो मेरी डायरेक्टर स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट से और तमाम मुताल्लिका डिपार्टमेंट से ये इल्तिजा है कि वो इस मैटर को देखें, क्योंकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। वालिदैन ने शिकवा किया कि स्कूल इंतजामिया ने जून जुलाई की फीसें भी ले ली हैं, बच्चों को होमवर्क तक नहीं दिया गया, बच्चों के मुस्तकबिल से खेला गया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। हाँ, जून जुलाई की इन्होंने फीस ले ली और ऐसे आराम से नहीं दी। इन्होंने ये कहा कि हम फीस जब तक आप पे नहीं करेंगे, जब तक हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे। तो जब हम लोगों ने इनसे रब्ता करने की कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातें पता चली कि ये स्कूल बिकन वालों ने ले लिया है, O लेवल हो जाएगा। हमने ये कहा हमारे बच्चों का क्या होगा, हम इनको मर्ज कर देंगे, दूसरे स्कूल में डाल देंगे। तो 1-2 बच्चे थोड़ी जिन्हें हम मर्ज कर देंगे, ये तो एक स्ट्रेंथ है बच्चों की। 800,000 बच्चों को कहाँ मर्ज करेंगे? वालिदैन ने महकमा तालीम सिंध और हुकूमत से मुतालबा किया है कि बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाली स्कूल इंतजामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन फरहान खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि गुज़िश्ता माली साल वफाक ने सिंध में के मुतादिद मंसूबों के लिए कोई रकम जारी नहीं की। महकमा ख़जाना की रिपोर्ट में इंकशाफ, माली साल 2023-24 ख़त्म हो गया, मगर सिंध के कई मंसूबों के लिए वफाक की रकूम जारी नहीं हुई। अब बात करेंगे कमिश्नर कराची के 2 मुतज़ाद नोटिफिकेशंस। 14 जून को 2 माह और 29 जून को जारी नोटिफिकेशन में 1 माह के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। 14 जून के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी 13 अगस्त तक लगाई गई, जबकि
29 जून को पाबंदी का फिर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी 1 माह के लिए लगाई गई। समंदर में नहाने पर पाबंदी 27 जुलाई तक होगी। कमिश्नर कराची हसन नकवी का कहना है कि समंदर के करीब बड़ी और ख़तरनाक लहरें बन रही हैं। समंदर में नहाने वालों की जान को खतरा लाहक हो सकता है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से बगैर इजाज़त मुहर्रम के जुलूस निकालने और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में मुहर्रम उल हराम में बगैर इजाज़त जुलूस और रैली निकालने पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक होगा। और अब बात करेंगे टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी का नए माली साल का 3 अरब 55 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया गया। बजट चेयरमैन टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो ने पेश किया। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। के बाद टाउन्स भी एक्शन में। इब्राहिम हैदरी टाउन का नए माली साल का बजट पेश। इब्राहिम हैदरी टाउन हॉल में चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने माली साल 2024 और 25 का बजट पेश किया। बजट का कुल तखमीना 3 अरब 55 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद है। तरक्याती अखराजात के लिए 1 अरब 11 करोड़ 97 लाख से जायद रकम मुख्तस की गई है। 3 अरब 55 करोड़ 36 लाख 79,942 रुपये का तक 89 रुपये, तो इसका बजट बनाया है तखमीना टोटल, जो इस पे हम आगे रेवेन्यू वगैरह को इकट्ठा करके इसके अंदर हम रहते हुए आगे बढ़ेंगे। बजट इजलास में अख्तर आरफानी, जान आलम जामोट, मुखी ओधामल, फातिमा मजीद और दीगर अरकान ने बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहुत बड़ी आबादी के लिए बजट कम है। मेयर कराची इब्राहिम हैदरी टाउन की मदद करें। कराची के 25 टाउनों में अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो ईद का मौका हो, चाहे वो मुहर्रम का मौका हो, ईद मिलादुन्नबी का मौका हो, या कोई और ऐसा इवेंट हो, सारे त्योहारों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम हैदरी टाउन पेश रहा और हर जगह पर सबने मिलके ये जो है बजट तैयार किया है और बेहतरीन बजट है, जिस पे आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे बड़ा किरदार उसमें आप ही का है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बजट है। हमारी हर दफ़ा हमारे टाउन चेयरमैन से ये डिमांड होती है कि आप डेवलपमेंट का बजट बढ़ाएं, तो इस बार जो है हमारे डेवलपमेंट का बजट बढ़ाएं, क्योंकि हर मेंबर जो चाहता है कि वो अपने इलाके में जो है वो डेवलपमेंट का काम करवा सके। इब्राहिम हैदरी टाउन के बजट में तालीम, सेहत, समाजी बहबूद, सकाफत और खेल और दीगर महकमों के लिए रकम मख्तस की गई है। कैमरामैन फरहान अमन के साथ आजिज जमाली, कराची। चेयरमैन मंगूपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने आइंदा माली साल के लिए 2 अरब 18 करोड़ 18 लाख रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है। बजट में 62,000 रुपए की बचत जाहिर की गई। तफसील रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। शहरों को सहूलत की फराहमी का अज़म। मंगोपीर टाउन का आइंदा माली साल के लिए 2 अरब 18 करोड़ 18 लाख रुपए से जायद का बजट पेश। माली साल 2024-25 का बजट पेश करते हुए चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद अवामी फलाह बहबूद का बजट पेश किया। और आने वाले जो सिंध गवर्नमेंट का जो ग्रांट होगा या ओजीटी में जो इजाफा किया जाएगा, जो एक तखमीना हमने लगा के इस बजट को हमने बनाया, जो कि मंगोपीर के हवाले से, जो पसमानदगी के हवाले से बहुत ही कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले ही चेयरमैन साहब के पास में गया था, उन्होंने मुझसे सालाना एक रिपोर्ट ली, उन्होंने कि क्या पोजीशन है। मैंने सारे हकीकत उनको बताया कि बेडफुट पे है और ओल्ड एरिया है मंगोपीर का, उसमें मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब को विजिट भी करेंगे और हमें स्पेशल ग्रांट जो है मंगोपीर टाउन के हवाले से देंगे। वाइस चेयरमैन राना आरिफ और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक बोले, बजट तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड लिए गए हैं। इनसे मंगोपीर टाउन की पसमानदगी दूर करने में मदद मिलेगी। बजट जो हमने 2024-25 हमने मैदानिया दिया है, इसमें हमने अपने तमाम मेम्बरान जो है उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑन बोर्ड थे और हमने उनको एतमाद में लिया था। जैसा कि आपने अभी भी देखा कि एक कसरत रायदही से बजट को मंजूर किया गया। एजुकेशन के लिए की है, मेडिकल के लिए की है, मुलाजमीन के लिए, पेंशन के लिए, उनके लीव इनकैशमेंट के लिए रकम मुख्तस की है, उनके मेडिकल अलाउंसेस के लिए रकम मुख्तस की है। तो जितना इसको हम आवाम दोस्त बना सकते थे, हमने इसको बनाया है। मंगोपीर टाउन काउंसिल ने आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली का मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के MC अफजल जैदी को खत। गुज़िश्ता 3 साल में शहर के नालों की सफाई की तफसीलात तलब कर लीं। खत में ठेकेदारों को अदायगियों की तफसीलात भी तलब की गई हैं और कहा है कि इनके हल्के गार्डन ईस्ट, पटेलपाड़ा, जमशेद रोड, जहांगीर रोड, लसवीला और ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों से शिकायत मौसूल हुई, लिहाजा फौरी तौर पर तमाम तफसीलात फ्राहम की जाएँ। महंगाई की सताए अवाम के लिए बुरी खबर। डिब्बे के दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 1.5 लीटर दूध का डिब्बा 105 और 1 लीटर का 75 रुपये महंगा हो गया है। टेट्रा पैक की 1 लीटर के डब्बे पर 75 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और नई कीमत 295 से बढ़कर 370 रुपये हो गई है। कराची में अदालतों में केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानहा 9 मई केस की समाअत हुई। अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सूबाई असम्बली अदील खान की अदम पेशी पर जमानत मनसूख कर दी। लांठी में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा आराई का मुकदमा, जबकि तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर पर फर्द जुर्म आयद किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जानिब से अगस्त 2023 के इश्तहारात के मुताबिक की गई भर्तियों को कलअदम करार दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में डकैती के मुकदमे की समाअत हुई। 2 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में अदालतों में केसेस की समाअत। इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई केस की समाअत की। अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सूबाई असम्बली अदील खान की अदम पेशी पर जमानत मनसूख कर दी। इंसाद दहशतगर्दी अदालत में लांडी में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा आराई का मुकदमा। अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिम राजा अजहर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तिगासा के गवाहों को 18 जुलाई को तलब कर लिया। ग्रेड 1 से 15 में 54,000 से जायद भर्तियां की गईं। अदालत ने MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जानिब से अगस्त 2023 के इश्तहारात के मुताबिक की गई भर्तियों को कलअदम करार दे दिया। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत में इलेक्शन मुहिम में तसादम के दौरान MQM कारकुन फराज के कत्ल का मुकदमा। अदालत ने पुलिस की मुकदमा दाखिल दफ्तर करने के लिए 1 लाख की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि दोबारा तहकीकात करके 13 जुलाई को रिपोर्ट पेश की जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में डकैती के मुकदमे की समाअत। 2 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुल्जिम नूर मोहम्मद को गैर कानूनी असले पर मजीद 7 साल की सजा सुनाई गई। बजट इक़दामात पर तेल और घी बनाने वालों के तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान और नाशपाती एसोसिएशन के चेयरमैन शेख अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि बजट में फाटा को टैक्स की छूट में 1 साल की तोसी को मुस्तरद करते हैं। मज़ीद देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट में। टैक्स में इजाफा, तेल और घी बनाने वाले भी बेचैन। पाकिस्तान वनस्पति एसोसिएशन के चेयरमैन शेख अब्दुल रज़ाक का कहना है कि वफाकी बजट में फाटा को टैक्स की छूट की मराद में 1 साल की तोसी दे दी गई। फाटा की आबादी 61 लाख है, जिसकी पाम ऑयल की तलब 80,000 टन बनती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर 3.25 लाख टन दरामद हो रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम तेल और घी पर 85 रुपए फी किलो टैक्स देते हैं, जबकि फाटा से सिर्फ 15 रुपए फी किलो टैक्स लिया जा रहा है। और वो बहुत ज़्यादा जो है ना माल मिसयूज़ हुआ है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है 6.1 मिलियन है टोटल, और उसकी आबादी के मुताबिक भी अगर पर केजी 20 केजी बंदा सालाना घी और ऑयल खाता है, अगर वो उसको भी देखा जाए तो वो 1,32,000 टन बनता है माल साल का। तो ये 3,60,000 3,70,000 टन माल आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, और ये सारा माल मिसयूज़ हो रहा है, और ये गवर्नमेंट को पता है, हर चीज़ का पता है। पाकिस्तान वनस्पति एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि बजट में नॉन फाइलर सप्लायर पर टैक्स 0.20% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। टैक्स रेट बढ़ने से फी किलो तेल और घी 10 से 12 रुपए महंगा हो जाएगा। नॉन फाइलर टैक्स है 0.2% जो हम दे रहे हैं, अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने 2% कर दिया उस पर, वो भी नहीं है। अगर ये इफेक्ट हम सारे लेंगे, सिर्फ 2% वाला ही ले लें हम, तो वो भी 10 से 12 रुपये केजी बनता है, ठीक है। और ये फाटा को पिछले 6 सालों से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्जम्पशन दी हुई थी। शेख अब्दुल रज़ाक ने कहा कि तेल और घी महंगा होने से महंगाई का बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। हुकूमत टैक्स पर नजरसानी करे। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक मार्केट में गुजरे हफ्ते मंदी के बादल छाए रहे हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स कमी से 78,444 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुए। इस रिपोर्ट में तफसीलात देखेंगे।
स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स की कमी हुई। एक हफ्ते में इंडेक्स 0.65% कमी से 78,444 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 79,388 रही। 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 77,908 रही। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 35 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टैगिंग देखी गई। बजट इकदाम पर सरमायाकारों की जानिब से मोहतात रवैया रहा। 18 अरब से जायद की पोजीशन थी तो सरमायाकार काफी मोहतात रहे और मार्केट ने 80,000 इंडेक्स क्रॉस करने के बाद हमने देखा मार्केट में सेलिंग आई, सप्लाईज आई, तो मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही। तकरीबन 300 के करीब पॉइंट्स मार्केट से इस हफ्ते हमने निकलते हुए देखे। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,409 अरब रुपए से घटकर 10,374 अरब रुपए रह गई। अशरफ खान, सिटी 21। अब बात करेंगे, पाकिस्तान बदकिस्मत मुल्क है जो अपने ही लोगों के हाथों तबाह हुआ है। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों के समंदर पार असासों से मुतालिक सेमिनार से खिताब में कहा, साल 2000 के बाद इस इमारात में पाकिस्तानियों की जायदादों में इजाफा हुआ है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, पाकिस्तान अपने ही लोगों के हाथों तबाह हुआ। साबिक चेयरमैन FBR ने हकाइक से पर्दा उठा दी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों के समंदर पार असासों से मुतालिक सेमिनार हुआ। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी का खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के बैरून मुमालिक में 150 अरब डॉलर के असासे मौजूद हैं। साल 2000 के बाद से अमारात में पाकिस्तानियों की जायदादों में इजाफा हुआ है। My estimate of that amount is around $150 billion, not $200 billion, which is almost equal to the foreign loans of Pakistan. If you take out the foreign loans of Pakistan, the range is almost $150 billion. So, but nobody can exactly calculate how much is the foreign assets of Pakistani citizens outside Pakistan. मगर 2000 के बाद उसमें एक और एडिशन हुई है, प्रॉपर्टीज इन दुबई। अब अगर एसिड की आप प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टी की अगर आप आइटम उठाएंगे तो उसमें यूके की प्रॉपर्टी है, USA की प्रॉपर्टी है, कनाडा की प्रॉपर्टी है, यूरोप की प्रॉपर्टी है। शबर जैदी का मजीद कहना था कि पनामा लीक मगरिब की तरफ से पैसा वाइट करवाने का तरीका था। सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने कहा था कि मैं पैसे वापस मुल्क में मंगवा लूंगा। मैंने उस वक्त ही कह दिया था कि लोग अपना $1 भी वापस मुल्क में नहीं ला सकेंगे। पनामा लीक भी कोई लीक नहीं थी। पनामा लीक भी वेस्ट का एक तरीका था कि पैसे को वाइट कराओ। तो सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने इसको सो वोटो एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि जी पैसे वापस लाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। उसमें जब हियरिंग हुई तो मुझे उन्होंने एमिकस क्यूरी बनाया, महमूद मांडी वाला कोर्ट बनाया उन्होंने। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए कहा था कि सर अगर आप $1 भी लिया है ना तो मैं काम छोड़ दूंगा। साबिक चेयरमैन FBR ने कहा कि जब तक हम अपने लोगों का एतमाद बहाल नहीं करते, बैरून मुल्क से सरमायाकारी की उम्मीद फजूल है। कैमरामैन शहरियार के साथ अयाज राना, सिटी 21। शहरी को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी का आज़म, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। महंगाई में मुफ्त तिब्बी सहूलत, कराची चैम्बर का एहसन इकदाम। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का फ्री मेडिकल कैंप, लैब की सहूलत भी दस्तियाब। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद शेख का कहना है कि लैब टेस्ट काफी महंगे हो चुके हैं। हमने बुनियादी टेस्ट की सहूलत फराहम की है जिसकी मालूमात से जिंदगी मुतवाजन तरीके से गुजारी जा सकती है। फ्री कैंप लगाया है, इसलिए लगाया गया है कि जो लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। महंगे भी हैं, आपको पता है टेस्ट भी बहुत महंगे हैं आजकल। लोग एक नॉर्मल टेस्ट भी जो है ना काफ़ी दिन पैसे इकट्ठे करके करते हैं। तो ये हमने फ्री इनकाद किया ताकि यहाँ पर आई टेस्ट का भी इंतज़ाम है, यहाँ ब्लड टेस्ट का भी इंतज़ाम है। फ्री मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होने वाले अफराद का कहना था कि कराची चैम्बर ने एक अच्छा इकदाम उठाया है। हमने इस फ्री कैंप से मुख्तलिफ टेस्ट करवाए हैं। मैंने ब्लड प्रेशर और शुगर का टेस्ट करवाया है और BMD का भी करवाने लगी हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आइज़ का भी टेस्ट करवाया है। मैंने आई टेस्ट करवाया है जो कि सही हुआ है और फिर डॉक्टर वसीम ने मुझे गाइड किया बहुत अच्छे से, लाइक वी शुड नॉट टेक मेडिसिन, मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स बाय आवरसेल्व्स। हम इनको डायग्नोस कराना चाहिए मेडिकल डॉक्टर से, फिर उसको लेना चाहिए। फ्री मेडिकल कैंप में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जल्द और बेनाई के टेस्ट के साथ साथ हड्डियों की कसावत के टेस्ट की सहूलत फराहम की गई थी। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21।